Welcome, Mr. Thakur, and welcome, Priya, to the Bebli Babu Show. Thank you so much for taking out time for doing this. It's such an honor to host you once again. Thank you. Thank you. So, I'll start the conversation, Mr. Thakur, with you. I request you to, थोड़ा सा बताइए हमें अपने बारे में, थोड़ा सा विशिंग फैक्ट्री के बारे में. How did it all start? Uh, my name is Rajesh Thakur, and I'm chairman of the Wishing Factory. The Wishing Factory was started by my son in 2015. My son means Parth Thakur, who is no more with us. We lost him in December last year only. That means about 4 months back. And it's just that कि लेगेसी में लोगों को अपने पिता से कुछ मिलता है एंड मेरे साथ में it's the other way around. I have received this organization and a legacy in which I have to fulfill his dreams, and that I'm intending to carry his light to create awareness about the thalassemia and the mission which we feel that is a genuine mission. And the way he started, it's very much required that it should reach its goal. And True. about this wishing factory, he being himself a thalassemia warrior, so he wanted to create awareness about this disease, and he wanted uh, kids of underprivileged areas to see the best possible life in this their birth. This is what I can say about the wishing factory and the mission, as I said. So, Priya, you are, a thalassemia warrior yourself, and you are also a part of the Wishing Factory. So, what is it that you do with the Wishing Factory, and how do you contribute? So, yes, correctly mentioned that I am a thalassemia major warrior, and since I stay in Pune, the Wishing Factory is also in Pune, and I have been coordinating things for the Wishing Factory in Pune. So here we have 300 plus warriors, thalassemia major patients, and for their blood transfusion, for their health care, for their education, whatever help they need in Pune. So it goes via me to the Wishing Factory, and we serve them here. Mr. Thakur, so मैंने प्रिया को last year, we met last year somewhere in the month of Jan, and I hosted her on the show. और उस time पे मुझे थैलेसीमिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, and प्रिया was kind enough to come on the show, and इन्होंने थैलेसीमिया क्या है उसके बारे में बताया, and उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया. Hmm. सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जितना मैं जानता हूँ थैलेसीमिया के बारे में, एज इट इज़ थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हैं वो उनकी हेल्थ बहुत सेंसिटिव होती है. Hmm. सो what has covid done to the entire thalassemia ecosystem of our country, या एटलीस्ट जितना आप कवर कर रहे हैं उस विसिनिटी में, उस इकोसिस्टम में, what has covid done? Sir, COVID has done otherwise also too much harm to the whole society, and thalassemia तो already एक आपने बताया जानते नहीं इसलिए एक लाइन बोल देता हूँ. थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है. तो बहुत सारे चैलेंजेस जो उनको फेस करने पड़े कि सारे हॉस्पिटल्स जहाँ ये फैसिलिटीज़ होती हैं वो ऑलरेडी कोविड की वजह से उसको प्रायोरिटाइज़ करने लगे, तो ये करेक्ट. बच्चे उनके लिए सेकेंडरी हो गए. सबसे पहला तो उनको ब्लो वहाँ मिला जहाँ वो ईज़िली एक्सेप्ट होने लगे थे, वहाँ से हम्म. उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ. दूसरा है कि इतने सारे लोगों का एक साथ बीमार हो जाने से ब्लड बैंक्स में जो एक रूटीन में हमारे हम्म. देश में कंडीशंस अच्छी होने लगी हैं, उसमें इस बीमारी के आने से ब्लड बैंक में कंटिन्यूस शॉर्टेजेस की बात आने लगी. ये अभी छोड़ दीजिए, जो अभी वैक्सीनेशन हम्म. ड्राइव की वजह से होने लगा, दैट इज़ अनदर न्यू फिनोमेना एडेड टू इट. बट करेक्ट. ओवर द पीरियड बिकॉज़ हॉस्पिटल्स एक्सेप्टिंग मोर पेशेंट्स बिकॉज़ ऑफ कोरोना, दे दिस इज़ एन फ्रॉम फॉर देम दिस इज़ अ इलेक्टिव दिस थिंग कि भई आप सोच के यहाँ आ रहे हैं, तो वो लोग हम्म. मना करने लगे. इससे उनको जो एवेन्यूज़ थे जहाँ वो ब्लड चढ़ाते थे, वो कम हुए. और एज़ आई सेड ब्लड ब्लैंक्स पर डिपेंडेंसी बढ़ी आफ्टर दिस वैक्सीनेशन ड्राइव. उससे उनकी और हालत ख़राब हो गई कि उनको शॉर्टेज ऑफ ब्लड क्रिएट होने लगी. तो दीज आर द टू मेन थिंग्स विच दे आर फेसिंग राइट नाउ. Right. So through the Wishing Factory,
हाउ डिड यू हैंडल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अगर वो ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है सो इट इज नॉट very good, like it can be fatal in most Yes, of Yeah. the cases. definitely, definitely. How did you react to it? How did the wishing factory and how did every individual ensured कि नहीं, चाहे जो हो जाए, जो ट्रांसफ्यूजन है वो ज़रूरी है, बंदे की जान ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या कैसे हुआ वो प्रोसेस पूरा? सर सबसे पहले तो हम मतलब ये एनजीओ की हमारी एक अपनी लिस्ट बनाते जाते हैं, जो भी हमारे डोनर्स कभी पास्ट में रहे हैं, जिनके थ्रू हमें डोनेशन मिला है ब्लड का, तो हम उनको इमीडिएटली कॉल करते हैं। जैसे ही हमारा कोई पेशेंट ये कहता है कि उसको ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा है, तो जो हमारी लिस्ट है वो इमीडिएटली हम फॉलो थ्रू करते हैं कि भाई इसने बंदे ने कब लास्ट ब्लड दिया। और जो हमारे पैटर्न्स हैं उनको हम इमीडिएटली कॉल करते हैं कि भाई हमारे एक बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है, तो हम हमारी उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को अपने जो लिस्ट्स हैं उनको फॉलो करके अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी कोशिश कर रहे हैं अभी यहाँ, जैसे कि भाई 4-5 जने मिल के भी ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, तो लेबोरेटरी वालों को बोल के आपने उनकी वैन को यहाँ बुला लिया जहाँ 5 से 7 ज़्यादा हैं, तो वो लोग इकट्ठा होकर अपनी सोसाइटी में ही, अपनी कॉलोनी में ब्लड डोनेट कर सकें। और ये दाहोद गोधरा में हमारी द विशिंग फैक्ट्री से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव रखा है कि इस तरीके से काम किया जाए। और अवेयरनेस हमारा मेन एक ड्राइव रहता है कि जिससे हम लोगों को बताते हैं कि भाई अभी इन बच्चों को ज़रूरत है, आप दीजिए। आप किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन से पहले, जैसा गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, या वैक्सीनेशन के बाद में इतने टाइम के बाद में, वो हम सभी को मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट एक पुश मिले कि भाई इन बच्चों के लिए तो। प्लस एट द सेम टाइम हम ब्लड बैंक्स में रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपके पास जब भी ब्लड के लिए कोई डिमांड आए, और ये हम कंटिन्यूस करते रहते हैं एक रैपो बनाने के लिए, और उनको हमेशा हमारे लिए गुड बुक्स में रखने के लिए, क्योंकि इन बच्चों की जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको बार बार लगता है, तो आप प्रायोरिटाइज इनको करिए और सबसे पहले इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम्म। ब्लड इनको मिले। और क्योंकि इनको बार बार देना है, तो हम ब्लड बैंक से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट अपने आप में ये करती भी है, नो डाउट अबाउट इट, कि भाई थैलेसीमिया वालों को प्रायोरिटी करके उनको ब्लड पहले अवेलेबल कराया जाए। तो वी ऑलवेज कीप ऑन रिक्वेस्टिंग ब्लड बैंक्स कि भाई जो थैलेसीमिया का बच्चा आता है, आप उनसे दोबारा रिप्लेसमेंट में डोनर इमीडिएटली मत मांगिए, उनको फ़िलहाल आप दे दीजिए, फिर पीछे से हम आपके लिए मैनेज करेंगे। हमारे सर्कल में और हमारे जो एसोसिएट्स हैं उनमें से आपको इस बच्चे का रिप्लेसमेंट दे देंगे। एंड दे एग्री टू इट ऑल्सो। इफ़ अ नॉर्मल पर्सन गोज़, तो वो लोग उस बात पे अड़ेंगे कि भाई हमें ब्लड आप रिप्लेसमेंट दीजिए तो ही हम आपको देंगे। बट ये करेक्ट। हमको ब्लड बैंक से काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि भाई वो लोग थैलेसीमिया को एक प्रायोरिटी समझ के उस वक्त तो उसको पहले अवेलेबल करा ही देते हैं, और उसमें एफर्ट्स हमारे उनसे रिलेशन मेंटेनशिप मेंटेन करने से होते हैं। सो प्रिया, कोविड Yeah. के कोविड ने, लाइक, और रादर आई शुड से, महाराष्ट्र हैज बीन द एपिसेंटर लास्ट ईयर भी और इस साल भी, एंड Hmm. अनफॉर्चुनेटली मुंबई पुणे हैव बीन ऑन द टॉप last year also and this time also, and you Yeah. you are handling the Pune zone. So what were those challenges that you faced and आपने और आपकी टीम ने कैसे handle किया, and what are the challenges that you have right now? तो द वेरी फर्स्ट चैलेंज है, जैसे अंकल ने मेंशन किया कि सेंटर्स, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिस पे हमारे पेशेंट्स रिलाई करते थे, तो उनका बंद हुआ। और ऐसी भी बात है कि प्राइवेट में भी बहुत सारे पेशेंट्स जाने लगे, तो हम लोग को पहले ये अप्रोच करने लगे लोग कि हम ट्रांसफ्यूजन कहाँ पे लें। तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर डेडिकेटेड टेक केयर सेंटर्स, तो हमने उन पेशेंट्स को वहाँ पे डाइवर्ट किया। पहले तो यहाँ से बात शुरू हुई, लास्ट ईयर पुणे की बात की जाए तो। उसके बाद ये जो ब्लड शॉर्टेज की एकदम से जो मार्च एंड मई अप्रैल में जो ये हिट हुआ ब्लड शॉर्टेज का, और हमारे पास ऐसा होता था कि हफ्ते में 20-20 रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, 20 पेशेंट्स आई हैव बीन वेटिंग फॉर ब्लड, एंड वी हैव बीन ट्राइंग थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वॉलंटियर्स, थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस कि ब्लड डोनर्स कैसे भी पहुंचे। तो एक तो उस बीच में जहाँ कोरोना एकदम पीक पे था, उस Hmm. टाइम पे एक बंदे को कन्विंस करना कि आप जाओ, डोनेट करके आओ ब्लड प्लीज, मतलब लिटरली प्लीड करना, एक तो वहां पे बहुत चैलेंजेस आए। बट वो लोग उस टाइम पे ह्यूमैनिटी भी बहुत जागी लोगों की, तो यस पीपल केम फॉरवर्ड, दे डोनेटेड, एंड हम मतलब कैसे ना कैसे बच्चों तक ब्लड पहुंचा। उसके अलावा कोरोना ने एक और बात पे हिट किया पुणे पेशेंट्स को,
कि राशन खत्म हो गया। सो हमारे पास ऐसे हम्म। भी कई पेशेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं अंडर लाइक डेली वेजेस क्लास को, जहाँ पे रिक्शा ड्राइवर के बच्चे हैं वो लोग, या उनके पापा लोग ऑफिस बॉय हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जो लॉकडाउन में नहीं कमा पा रहे थे कुछ। तो इन बच्चों ने हम लोग को अप्रोच किया कि हमारे घर पे खाने को भी नहीं है। So we again from the wishing factory started with the help of our donors started contributing for the ration help also. So other than दवाइयाँ, ब्लड, हमने राशन का भी सपोर्ट किया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमें चैलेंजेस ने हिट किया, but with the help of different people and our team we did manage it all. एंड आई एम श्योर ये एक ऐसा टाइम रहा है, दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। एक नॉर्मल मेरे जैसा आदमी जो घर पे बैठा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम लोगों को कोविड एग्जाइटी इतना परेशान करी। सो आई कंप्लीटली empathize and I can imagine what the entire thalassemia ecosystem has been going through. So